Sir, you just give me 2 minutes this time. Minute, This one minute, time, sir. I am sure next time TDP is going to come up with a lot bigger number and I won't have any problem with time. But this one time, sir, in the then last you can budget speak speech, in the next time. give us 1 minute. 1 minute, I am wrapping up. And you have been a witness of our speeches for the last 10 years. Whenever there has been a discussion on the budget, the main issue, the important issue that we always talk about is the AP Reorganization Act. And since the bifurcation of Andhra Pradesh, almost 10 years have passed, sir. I would like to present a report card in front of the central government for these 10 years by dividing it into two terms, sir. One when TDP was in power in the state government and one when YSRCP is in power in the state government. So the first 5 years when TDP was there, sir, in this very house, we have discussed a lot of issues, and considering the AP Reorganization Act, some of the important issues, how it differed in the first term and the second term, I would like to explain it to the House, sir. One important issue that we had when we were stepping as a new state was building of the new capital, sir. And we had a challenge of building up the new capital. The then Chief Minister of Andhra Pradesh, CBN, took it upon himself, and he pulled in a land of 30,000 acres from the farmers, and we have did the foundation stone along with Prime Minister Narendra Modi ji also for the capital city of Amaravati, sir. And it happened on a Shubh Divas of Vijay Dasami. We did the foundation stone, and we created a lot of pride in the capital city of Amaravati. And in the next term, after YCP has come to power, it has created a nutshell, mad idea of creating 3 capitals. And right now we are ended up with no capital at all. Now Amaravati has been, the farmers of Amaravati has been protesting for 1500 days, sir. In this very country, farmers have been protesting for 1500 days, but they have been beaten, they have been arrested, they have been insulted, and that is the situation that Amaravati is going through today. And RBI itself has said that if the state government of Andhra Pradesh can tell us where the capital is, then we can establish the headquarters. That is the sad situation of Andhra Pradesh today, sir. Another important issue within the AP Reorganization Act is the creation of new railway zone. When TDP was in power, we used to fight day in and day out. And by the end of that term, sir, in 2019, February, the central government announced for the creation of a new railway zone. Now the new government comes up in the state. It is their responsibility now to follow up on that and to make it operational, the new railway zone. But today, after 4 years and 9 months, 52 acres have to be given to the railway department for the establishment of, sir. Sir, I've just mentioned you how 30,000 acres have been pulled up for creation of a new capital. Now the state government is not even able to give 52 acres for creation of a new capital zone, sir, for creation of a railway zone. That is the status of Andhra Pradesh today. Educational institutions were also mentioned. Sir, 2 minutes, I'll wrap up. 1 minute. Educational institutions were also mentioned in the AP Reorganization Act. Under TDP's rule, IIM, IIT, ISERN, NIT, Central Tribal University, land was given, thousands of acres, and almost 1,000 crores worth of compound walls have also been built and given to the central government, sir. But today, after the change in government in the state, not a single building has been completed. All the students have been robbed from having their permanent campuses and trying to complete with a lot of dignity in their campuses, sir, but not a single campus has been finished. When we asked the central government why the AIMS construction is getting delayed, the answer was given in the parliament itself saying that there is no availability of sand in the state, sir. So that is the situation of Andhra Pradesh. Yes. And another important project, sir, you just give me 2 minutes this One time. minute, This one one minute, you time, sir. conclude. I am sure next time TDP is going to come up with a lot bigger number and I won't have any problem with time. But this one time, sir, in the Then last you can budget speak in the speech, next time. give us 1 minute. 1 minute I am wrapping up. 1 minute. Yes. Polavaram. Conclude. 1 minute concluding, sir. Polavaram, national project, 72% completed Srimati under Harris TDP's rule. Kaur Only ji. 7% progress under YCP rule, sir. Jobs, almost 5 lakh jobs created under TDP rule. And now not a single notification from the government. They say job calendar, they say mega DSC, not a single job has been given. And even the private companies which are trying to come to Andhra Pradesh, they are being kicked out of the state, sir. This is the sad situation of Andhra Pradesh today. The AP Reorganization Act was supposed to be completed in 10 years. We are completing the 10 years. But my request to the central government is all these assurances have to be completed, sir. So that's my request, sir. Thank you. Thank you. इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमारा ये पहला टर्म है और इस टर्म में जिस तरीके से ये संसदीय कार्य चला है, जो बहुत कुछ सीखने को इस कार्य क्षेत्र से हम लोगों को मिला और हमारे क्षेत्र में जाकर बहुत सारा काम करने मिला है,
तो मैं हमारे इस पार्लियामेंट का, हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला साहब का और इस देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और इस पूरे देश के युवाओं के तरफ से 2014 के पहले जो अर्थव्यवस्था हमारे देश की थी वो 11वीं पोजीशन पे हम खड़े थे सर, पर इस देश के युवाओं को, बेरोजगारों को इस स्थिति से उभर कर देश को और अलग नंबरों पे, आंकड़ों में देखना था। इसलिए 2014 के बाद जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो 5वें स्तर पे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने हमें लाकर अर्थव्यवस्था में स्टैंड किया है। यह हमारी सरकार का, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का ये बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ी भेंट हमारे युवाओं को इस देश की है। अंतरिम बजट था और उसमें उसी के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगी सर कि हमारे अमरावती क्षेत्र से मैं पहली बार सांसद बन के इस पार्लियामेंट में आई हूँ सर। सौभाग्य है मेरा कि एक सैनिक की बेटी होने के बाद इस पार्लियामेंट में आके बड़े बड़े लोगों के साथ, मंत्रिमंडलों के साथ, देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर, ये पार्लियामेंट में बैठकर देश के बड़े बड़े निर्णयों में योगदान दिया। तो मैं अपने क्षेत्र के वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये मौका दिया और मैं यहाँ तक पहुंची सर। ये सरकार के द्वारा ये 2019 में, ये 5 वर्षों में सर, ये सरकार ने मेरे क्षेत्र को जो दिया है उसका उल्लेख ये पार्लियामेंट में करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे जैसे यंगस्टर जो आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र में आके अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, उनके एनकरेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है सर। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सर बन्नेरा स्टेशन को आने वाले 25 तक और अमरावती स्टेशन को आने वाले 27 तक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम बहुत जोरों से शुरू है। उसके लिए सरकार को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। शकुंतला, ब्रिटिश कालीन शकुंतला ट्रेन है हमारे यहाँ पे क्षेत्र में सर। 75 वर्षों से वो मीटर गेज पे चलती थी, पर ये सरकार ने 75 वर्षों का इतिहास मेरे क्षेत्र में मोड़ा है रेलवे डिपार्टमेंट ने और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने। जो ब्रिटिश कालीन चलती थी, ब्रिटिशों के राइट्स हमारे क्षेत्र में चलते थे, आज जाकर वो भारत सरकार को उसके राइट्स मिले और उसकी सॉइल टेस्टिंग होकर आने वाले समय में उसका ब्रॉडगेज होने का काम शुरू हो रहा है। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट को, रेल मंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद दूंगी। 75 वर्षों का इतिहास बहुत सारे इस प्राइम मिनिस्टर जी ने और ये संसद ने मोड़े हैं ये पिछले 10 सालों में। और उसके साथ सर हमारे अचलपुर से चांदूर बाजार का 30 किलोमीटर का जो पैन है उसकी सॉइल टेस्टिंग शुरू है और निम्बोरा से नई अमरावती का जो 1.1 किलोमीटर का जो सर्वे 2011 में हुआ उसका भी काम अगर शुरू किया जाए तो आने वाले समय में मेरी अमरावती के लोगों को, यंगस्टर को जो बाहर जाके काम करते हैं, दिल्ली तक पहुंचते हैं, सूरत जाते हैं या मुंबई तक जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो मैं आपसे विनंती करूंगी कि रेल डिपार्टमेंट निम्बोरा से नए अमरावती का भी जो रूट है 1.1 उसको जल्द से जल्द उसकी भी टेस्टिंग करके उसका काम शुरू किया जाए। सर पूना रेलवे गाड़ी हमारी शुरू की गई है, जबलपुर जो बंद पड़ी थी उसे शुरू करने का काम हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने किया है। दुरंतो जैसी बड़ी गाड़ियां हमारे रेलवे स्टेशन को उपलब्ध करके दी हैं। ये जितनी भी रेलगाड़ियों का विषय मैं आपके सामने रख रही हूँ सर, केंद्र को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोगों की सबसे ज़्यादा अपेक्षा होती है कि रेलगाड़ियाँ कितनी हमारे सांसद हमारे क्षेत्र को ला के दे रहे हैं या कितने स्टॉपेज हमारे क्षेत्र को मिल रहे हैं। ये हमारी एक उपलब्धियों में से बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और वो करने का प्रयास हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमें विनंती की, अमरावती करों ने, और मैंने हमारी सरकार को विनंती की। और ये सरकार ऐसी है कि आम ग्राउंड में रहने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ सुनने वाली है और वो सुनकर ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट मेरे क्षेत्र में किया है सर। मैं विनंती करूंगी, फाइनेंस मिनिस्टर इज सिटिंग हियर सर. Sir, few problems are there with GST. Who, sir, I need some time, sir. मुझे लगेगा क्योंकि ये आखिरी स्पीच रहेगा इस टर्म का, तो सर जीएसटी का जो सेक्शन 16 जो 4 है, ये जो एक्ट बना था 2017 में, इसमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी में व्यापारी वर्ग, चार्टेड अकाउंटेंट्स जो काम करना चाहते हैं उसे जो दंड लग रहा है, जो फाइन लग रहा है, ओवर उन पे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुझे लगता है इसमें अगर थोड़ा सुधार किया जाए तो आने वाले समय में जिनको टैक्स जीएसटी भरना है उनको भी बहुत ज़्यादा इजी आसानी होगी. सर ईपीएफ 95 ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पूरे देश के लोगों का है जो रिटायर्ड हुए हैं. सर मेरा देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है क्योंकि 400 रुपये जो रिटायरमेंट के बाद उन लोगों को मिलता था,
देश के प्राइम मिनिस्टर जी आने के बाद उनको 1000 रुपए मिले हैं। पर मेरी विनती रहेगी सर कि उन लोगों को जब हम 1000 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए में अब इस पीरियड में 1000 रुपए में महीने में अगर जिन्होंने 50 साल 40 साल अपना योगदान सर्विस के माध्यम से दिया उनको ये पूरा नहीं होगा सर। तो मैं विनती करूंगी सर, मेगा टेक्सटाइल पार्क, हमारे पीएम मित्रा जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है देश में 7 है सर, 7 में एक महाराष्ट्र है और एक वो मेरे अमरावती क्षेत्र को हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने और ये पार्लियामेंट ने दिया है। तो अमरावतीकरों की तरफ से आने वाले समय में मिनिमम 2 लाख लोगों को, 2 लाख युवकों को, मेरे क्षेत्र के विदर्भ के क्षेत्र के बच्चों को वहां पर रोजगार मिलेगा। तो उनके सभी की तरफ से, विदर्भ की तरफ से और मेरी अमरावतीकरों की तरफ से मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, हम सब कई लोगों ने अभी फार्मर्स लोगों पे बोलते हुए हम लोगों ने सबने सुना है। मुझे लगता है किसान ये मेरा राजा था, राजा है और ये राजा रहना चाहिए। इसके लिए सर मेरे कुछ ही मुद्दे हैं सर, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि दिस मस्ट बी द लास्ट। समय की सीमा है। तो मैं आपको विनती करूंगी सर कि किसानों के ऊपर कपास, सोयाबीन, तूर, मूंग, संतरा ये फसलों पे जो अपेक्षित है कि इनके जो नुकसान हो रहा है, जो इनका लागन है वो भी इनके हाथ में नहीं आ रहा है। अगर उसके लिए उस पे हमने काम किया तो महाराष्ट्र में जो किसान आज बहुत परेशान है उनको बहुत बड़ी मदद और भी माननीय सदस्य हैं जिनको बोलना है सर। मेरे जी, इसलिए कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड नाउ इमीडिएटली। सर, जो किराए पे रहने वाली महिलाएं हैं जिनके लिए ये योजना इस बार बजट में लाई गई है सर, जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती थी और जितनी भी योजनाएं घरकुल के लिए चलती हैं हमारे महाराष्ट्र में, तो जब हम जाते थे स्लम्स में रहने वाले बिना घर के लोग जो आखिरी सांस उनकी भाड़ों के घरों में रह जाती थी, उनके लिए जो योजना लाए, उनको घर मिलने की जो योजना लाए, मुझे लगता है ये भगवान से कम नहीं होगा कि ये सरकार ने उनको ये योजना सर 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स, हमारे क्षेत्र को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारे केंद्र सरकार ने दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आवास योजना जो पीएम की साहब की चलती है, मैं विनती करूंगी सर ग्रामीण और शहर, जो शहर में 2.5 लाख रुपए दिया जाता है वही ग्रामीण को भी, ग्रामीण के लोगों को भी वो 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए। मैं विनंती करूंगी सर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर सर बहुत इंपॉर्टेंट सर। लास्ट 1 मिनट सर, लास्ट 1 मिनट नहीं, लास्ट 1 मिनट, लास्ट सेंटेंस ओनली। नो सर, हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, थैंक यू, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर। थैंक यू। बहुत दिनों से वो अपने अपने डिमांड्स के लिए बाहर लगी पड़ी हैं, तो उनको मदद करना जी हमारा कर्तव्य है सर। उनको जी प्लीज